Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing well. In this video lecture, we are going to discuss the part first of question paper that was asked in Sikkim Srinagar MSc Radiology, Radiotherapy and Nuclear Medicine Examination 2023. So guys, without wasting time, let's get right into the topic. So today's question number first is trauma radiography. What is the purpose of trauma series? यानी ट्रॉमा रेडियोग्राफी में ट्रॉमा सीरीज का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज टू इंक्लूड ए कॉम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम्स. सेकंड इज टू फोकस solely on head and neck injuries. Third is to evaluate extremity fractures only. Fourth is to capture images of the chest and abdomen. So its right answer is option number A, that is to include a comprehensive examination of all body systems. यानी जो हम ट्रामा रेडियोग्राफी में ट्रामा सीरीज देते हैं उसका पर्पस ये है कि हम बॉडी के हर एक सिस्टम का comprehensive examination लें. So its correct answer is option number A, that is to include a comprehensive examination of all body systems. Now let's move to question number 2. Question number 2 is why is portable radiography commonly utilized in trauma and emergency settings? ट्रामा और emergency settings के लिए हम पोर्टेबल रेडियोग्राफी को कॉमनली क्यों यूटिलाइज करते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज टू इंक्रीज द रेडिएशन एक्सपोजर, टू मिनिमाइज पेशेंट मूवमेंट एंड ट्रांसफर, टू प्रोवाइड ए मोर कंफर्टेबल इमेजिंग एनवायरनमेंट, टू रिप्लेस स्टैंडर्ड फिक्स्ड रेडियोग्राफी इक्विपमेंट. सो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, to minimize patient movement and transfer. To minimize the patient movement and transfer. Now let's move to question number 3. Question number 3 is why is water soluble contrast media preferred in certain spatial radiography procedures? कुछ स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर्स में हम वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया क्यों प्रेफर करते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. इट प्रोवाइड्स बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट, इट हैज़ लोअर कॉस्ट, इट मिनिमाइजेज पेशेंट डिस्कम्फर्ट, इट इज़ ईजियर टू एडमिनिस्टर ओरली. तो जो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया हैं तो इनको हम स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर्स में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये हमें प्रोवाइड करे बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट. सो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट प्रोवाइड्स बेटर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन स्पेशल रेडियोग्राफी फॉर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम what is the purpose of using barium sulfate as a contrast agent? यानी जब हम स्पेशल रेडियोग्राफी करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का तो जब उसमें हम बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं एज ए कंट्रास्ट एजेंट. तो बेरियम सल्फेट का पर्पस क्या होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में स्पेशल रेडियोग्राफी के लिए? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं. टू रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर, to highlight the esophagus, to enhance soft tissue visibility in the intestines, to assess bone density. तो इसका जो करेक्ट आंसर है that is option number C, that is to enhance the soft tissue visibility in the intestines. Now let's move to question number 5. Question number 5 is why is careful consideration of contrast allergies and renal function important before using iodine based contrast media? यानी आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करने से पहले ये क्यों ज़रूरी बन जाता है कंट्रास्ट एलर्जीज और रेनल फंक्शन की केयरफुल कंसिडरेशन ली? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं.
to increase the risk of adverse reactions, to minimize radiation exposure, to ensure better image quality, to prevent potential complications in certain patients. So its correct answer is option number D, that is to prevent potential complications in certain patients. Now let's move to question number 6. Question number 6 is, what is the advantage of using ultrasound over X-rays in imaging soft tissues? सॉफ्ट टिश्यूज की इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड का क्या एडवांटेज है ओवर यूजिंग एक्सरेज, यानी अल्ट्रासाउंड का क्या एडवांटेज है एक्सरेज से जब हम सॉफ्ट टिश्यूज की इमेजिंग करते हैं। तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड्स बेटर बोन विजुअलाइजेशन, अल्ट्रासाउंड यूजेस लोअर फ्रीक्वेंसीज, अल्ट्रासाउंड डज नॉट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन, ultrasound has faster imaging speed. So its absolute answer is option number C, that is ultrasound does not use ionizing radiation. Now let's move to question number 7. Question number 7 is, which component of the ultrasound machine is responsible for converting electrical energy into sound waves and vice versa? यानी अल्ट्रासाउंड मशीन का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करना और साउंड वेव्स को बैक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। सो क्लियरली इट इज द ट्रांसड्यूसर। तो ये सब जो प्रोसेस होता है इसमें इट इज ड्यू टू द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड वेव्स में और साउंड वेव्स कन्वर्ट बैक होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमेज रिसेप्टर इन रेडियोग्राफी इक्विपमेंट? रेडियोग्राफी इक्विपमेंट में इमेज रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हैं। टू जनरेट एक्सरेज, टू कन्वर्ट एक्सरेज इनटू विजिबल लाइट, टू डिटेक्ट एंड कैप्चर एक्सरेज, टू फिल्टर एक्सरेज। तो इमेज रिसेप्टर का काम होता है एक्सरेज को डिटेक्ट करना और कैप्चर करना। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is, how does power Doppler differ from color Doppler in assessing blood flow? जब ब्लड फ्लो की असेसमेंट होती है तो पावर डॉपलर कैसे डिफर करता है फ्रॉम द कलर डॉपलर? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पावर डॉपलर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ब्लड वेलोसिटी, कलर डॉपलर इज मोर सेंसिटिव टू लो फ्लो, color Doppler provide a qualitative assessment of flow, power Doppler is sensitive to flow direction only. Its right answer is option number A, that is power Doppler provides information on blood velocity. Now let's move to question number 10. Question number 10 is, what does the term color Doppler refer to in ultrasound imaging? अगर हम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की बात करेंगे तो टर्म कलर डॉपलर क्या रेफर करती है? टर्म कलर डॉपलर का मतलब क्या है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स, रियल टाइम मैपिंग ऑफ ब्लड फ्लो वेलोसिटीज, एनहांसमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट, मेजरमेंट ऑफ टिश्यू डेंसिटी। सो इट्स एब्सोल्यूट आंसर इज option number B, that is a real time mapping of blood flow velocities. Now let's move to question number 11. Question number 11 is, in computed tomography what component rotates around the patient to acquire cross sectional images? computed tomography में कौन सा कंपोनेंट ऐसा होता है जो कि पेशेंट के इर्द गिर्द घूमता है और क्रॉस सेक्शनल इमेजेस लेता है? तो इट इज क्लियरली द एक्सरे ट्यूब दैट रोटेट्स अराउंड द पेशेंट
and acquire cross-sectional images. So its right answer is option number A, that is X-ray tube. Now let's move to question number 12. Question number 12 is, what is the purpose of image reconstruction in CT, computed tomography? कंप्यूटेड टोमोग्राफी में इमेज रिकॉन्स्ट्रक्शन का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है. टू इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट, टू रिड्यूस रेडिएशन डोज, टू कन्वर्ट एक्सरे फोटॉन्स इनटू विजिबल लाइट, to create detailed cross-sectional images from raw data. Its correct answer is option number D, that is to create detailed cross-sectional images from raw data. Now let's move to question number 13. Question number 13 is, what advantage does digital radiography offer in terms of image storage and retrieval? अगर हम image storage और रिट्रीवल की टर्म्स में देखेंगे तो डिजिटल रेडियोग्राफी की क्या एडवांटेज हैं? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या हैं. लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, इनएबिलिटी टू आर्काइव इमेजेस, एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड इजी रिट्रीवल, डिपेंडेंस ऑन फिजिकल फिल्म आर्काइव. तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज efficient electronic storage and easy retrieval. Now let's move to question number 14. Question number 14 is, in digital radiography, which device is responsible for converting X-ray photons into electronic signals? Digital radiography में कौन सा डिवाइस रेस्पॉन्सिबल है एक्सरे फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या हैं. फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन, इमेज इंटेंसिफायर, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर पैलेट, डिटेक्टर और फ्लैट पैनल रिसेप्टर. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिटेक्टर और फ्लैट पैनल रिसेप्टर. डिटेक्टर या फ्लैट पैनल रिसेप्टर एक ऐसा डिवाइस होता है डिजिटल रेडियोग्राफी में जो कि एक्सरे फोटॉन्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, व्हाट मैग्नेट टाइप इज कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल एमआरआई स्कैनर्स? जो क्लिनिकल एमआरआई स्कैनर्स होते हैं इनमें सबसे कॉमन टाइप ऑफ मैग्नेट कौन सा यूज होता है? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है. परमानेंट मैग्नेटिस, superconducting magnets, electromagnetic coils, ferrite magnets. Clearly its right answer is option number B, that is superconducting magnets. So guys, these were the 15 questions that were asked in MSc Radiology, Radiotherapy and Nuclear Medicine examination, SICKIMS Srinagar 2023. Soon I will be back with the part 2 of this session. Thank you.